मनाने के लिए उपस्थित हुए, जिसकी इस वर्ष की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। विज्ञान और नवाचार के इस युग में हम भारतीय युवाओं की भूमिका को पहचानते हैं और उनके योगदान का सम्मान करते हैं। इसी भावना के तहत आज हम एक विशेष स्वरचित कविता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रतिभाशाली छात्राएं अपनी स्वलिखित कविताओं का पाठन करेंगी। स्वलिखित कविताएं केवल शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि वे हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति होती हैं। ये कविताएं हमें हमारे दिल की गहराइयों से जुड़ने का अवसर देती हैं और हमें विचारशीलता और रचनात्मकता के पंख प्रदान करती हैं। आज की इस प्रतियोगिता में हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान और नवाचार के विषयों को हमारे युवाओं ने अपने शब्दों में पिरोया है। लेकिन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के पहले मैं चाहूंगी कि I would like to request Professor Richa Shukla ma'am to felicitate our respected principal ma'am. Thank you, ma'am. Now I would like to call our first participant, अन्नू कुमारी। मैं चाहूंगी आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, नाम, क्लास और अपनी पोएम का टाइटल एंड देन पोएम डिसाइड करें। नहीं, आ जाइए। Good afternoon to all my esteemed judges, the principal ma'am, my professor, and my dear friend. I'm Anu Kumari from BSc 6th semester, and now I'm here to recite a poetry on National Science Day, which is based on the theme Empowering Indian Youth for Global Innovation in Science and Technology for Viksit Bharat. Okay, now I'm going to start my poetry. Oh, young mind of India, rise, dream beyond the endless sky, with grace and strength in your eyes, march ahead with strength and pride. In every lab, in every class, you shape the future, bold and vast. You have those certified strength and, can I just do once? I just wrote it so. Yeah. I'd like to start it again if I make this into this. Okay. My poetry has a contained comprising of the science and innovation. Rise, young minds of India. Oh, young minds of India, rise. Dream beyond the endless skies. With science and knowledge as your guide, march ahead with strength and pride. In every lab, in every class, you shape the future, bold and vast. Innovation flows through your veins, breaking barriers, breaking chains. From Chandrayaan's celestial flight to AI shining bright as light, your genius crafts a brighter day, leading Bharat in every way. Clean energy, a greener land, a future shaped by your own hand. Science shall be your guiding star, taking Bharat near and far. So rise, young minds, take your place, lead the world with strength and grace. A Viksit Bharat calls your name, to shine with glory, rise to fame. Thank you so much. Next participant, Zoya. आपकी भी इंग्लिश में morning to one and all present here. My name is Satakshi Trivedi and I'm a student of BSc second year. Today I'm going to present a poem in front of you all
on the topic science, and the title of my poem is A Legacy of Discovery. In the realm of science, where minds are bright, a cast of characters who shone with light, Galileo gazed at the stars up high and discovered secrets in the celestial sky. Newton's laws of motion and of gravity helped us understand the world's harmony. Einstein's theory of relativity so grand changed our perspective on space and time's land. Curie's curiosity led her to explore the mysteries of radiations and the secrets galore. Darwin's voyage on the Beagle so bold led to the discovery of evolution's story to be told. Hawking's brilliance in the face of adversity's might illuminated black holes and the universe's delight. Tesla's innovations in the realm of electricity's flow lit up the world with a spark that would glow. Marie Curie's daughter, Irene Joliot Curie's stride, continued the legacy of her mother's pride. Franklin's X-ray vision revealed the secrets within, and Watson and Crick's discovery of DNA's twisted kin. Science is a journey of discovery and of might, guided by the pioneers who shone with light. Their names etched in history as the giants of the mind, their discoveries and innovations forever intertwined. Science continues to evolve with each new find, building upon the shoulders of the giants left behind. Thank you and have a nice day. Next, Iram Ansari. A very good morning to our principal ma'am and our respected teachers and friends also. Today is the National Science Day. Okay? My name is Iram Ansari. I am a student of BSc Science, second year. The National Science Day. My poem name is Our Amazing Science. Science is not just a subject, it's a way of thinking and understanding the world. Even everything works just because of science. Even our old cars and new appliances also. It will not go so far because we'll explain plants and trees, and also it is used to find out cures of the diseases. Science is the foundation of our future. Science is just a tool and a proof of the globe. It is not just a fun. It's a finding the equation and that chlorine and bromine are just confusing us all the time. There are so many elements which have a fun. Science is a new ending journey of a discovery and exploration. Thank you. Meenakshi Chaurasia. Good morning to one and all present here. Myself Meenakshi Chaurasia from BSc first year. Today I am going to recite a poem related to the topic science only. Sodium is reactive, sodium is like heart. Sodium like to tap that sexy chloride body. Helium before neon, उसके नीचे argon. ये सारी तो है नोबल गैसेस. बाजू में है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन. अरे जिससे स्किन पे हो जाते हैं रैशेस. Lithium is in group 1. Lithium used in batteries. Lithium help me take those sexy डब्बे selfies. Thank you. Tejaswini Gupta. Good morning to all of you, my respected judges and principal ma'am and all my dear friends. My name is Tejaswini Gupta and today my poem is about the topic Learn a Science that will lead to a developed India. Are you ready to shape India's future with groundbreaking innovation? Then say yes. Someone forced drink alcohol to you and smoking to you. Then say no to them. Get ready to code, create and innovate. This is your chance to build solution for a brighter and more advanced India. Then say I will. Is your chance to create cutting edges, teach solution that drive progress. Just say I can. Whether you are passionate about AI, sustainability, robotics, space, tech, or digital transformation, just say I will. Innovation, collaboration, and problem solving for ourselves and our nation, just say I do.
Make yourself turn into the platform to turn your ideas into reality. Let's keep working on yourself. If you're afraid to science and not know how can I shape India, let's venture with science and develop India with working smart. Thank you. Ayushi Verma. Good morning, all of you. My name is Ayushi Verma. I am a student of BSc fourth semester, second year. Today I am going to tell you a poem on the topic Women in Science. बात मत करिए. आयुषी. So sharp, with words so strong, women in science have led all along, breaking the chains to find the past, carving a future that builds to a last. From the stars above to the oceans deep, they dream, they build, they dare to sleep. Equations dance in their brilliant mind, new discoveries the bird spoon finds. In labs they stand, in space they soar, in innovating medicine, unlocking more, coding the future, designing the cure, their power, their wisdom, steady and pure. No field too vast, no dream too big. They script success across the sky. For every girl with a passion bright, the world is hers, reach for the light. Thank you. Next, Suman Tiwari. Hello and welcome. I am Mahima Singh of BSc 4th Sem. The title of my poem is The Science of Wonders. In ancient India, wise men did strive. Arbhat led the way with sun at the center side. He showed us that earth orbits the sun's bright light, a discovery so bold in the dark of night. Shushruta, the surgeon with skills so divine, healed the sick and made the blind shine. Charak, the physician with knowledge so grand, helped us understand the human body's plan. In modern times, scientists like Einstein did shine, unveiling the secrets of space and time. Newton's law, a foundation so bright, Darwin's evolution, a story so long, Curie's radiation, a discovery so bold, Hawking's black hole, a mystery to unfold, Tesla's electricity, a spark so bright, modern scientists shining with all their might. From physics to biology, chemistry to space, science is a wonderful journey through time and space. Science is a river flowing ever free, a constant quest for knowledge and discovery that's meant to be. Thank you. Amandeep Kaur. A very good morning to everyone. Myself, Amandeep Kaur from BSc second year. Today I am going to recite a poem on the topic इंग्लिश में समझें साइंस का राज. फिजिक्स का सीन, क्वांटम का झोल, स्क्रॉडिंगर की कैट जिंदा या ढोल. हेज़नबर्ग बोला पोजीशन ना पकड़, वेलोसिटी चाहिए तो अनसर्टेनिटी रगड़. रिलेटिविटी आई, आइंस्टाइन का स्वैग, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर टाइम का लैग. ब्लैक होल में घूमो या वर्म होल का टूर, ग्रेविटी का कर, स्पेस टाइम का शूट. केमिस्ट्री में धमाका, एंट्रोपी का राग, गिब्स का फॉर्मूला, फ्री एनर्जी का राग. कैटालिसिस करें, रिएक्शन का बूस्ट, थर्मोडायनेमिक्स से बनाए हर बूस्ट. ऑर्गेनिक का जादू, बेंजीन का रिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सिग्मा पाई का स्विंग. इलेक्ट्रोलिसिस चालू, आयन का नाच, रिडॉक्स के साथ पोटेंशियल का साथ. मैथ्स में कैलकुलस, इंटीग्रल का लोड, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए ब्रेन का कोड. फोरियर ट्रांसफॉर्म, वेव का सिग्नल, कॉम्प्लेक्स नंबर से बन जाए जिंगल. टोपोलॉजी आई, सरफेसेस का ट्विस्ट, मोबियस स्ट्रिप पे लॉजिक का ट्विस्ट. चार्ल्स थ्योरी बोले बटरफ्लाई का फ्लैग,
प्रेडिक्शन आउट, सिस्टम का ज्ञान। फिजिक्स में स्ट्रिंग, डायमेंशंस 11, मल्टीवर्स का चक्कर, बियॉन्ड आवर हेवन। केमिस्ट्री के बॉन्ड्स, क्वांटम का बेस, मैथ्स के प्रूफ्स, इन्फिनाइट का चेज। फोटोन का डांस या मोल का वाइब, आइगन वैल्यू से सिस्टम को डिस्क्राइब। इंग्लिश में समझ, ये तीनों का राज, टफ कॉन्सेप्ट से बनाए ज्ञान का दास। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। बीते युग से निकल चुका है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है विज्ञान। बीते युग से निकल चुका है मानव हर क्षेत्र में आज। मानव ने जो बिगुल बजाया, कई आविष्कार हुए हैं आज। विज्ञान की दुनिया में हम चलते हैं, नई नई चीजें सीखते और जानते हैं। विज्ञान की शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। आकाश में उड़ते विमानों को देखकर हमें विज्ञान की शक्ति का पता चलता है। कंप्यूटर और मोबाइल से हमें जुड़ते हैं। विज्ञान की दुनिया में हम रहते हैं। विज्ञान की रोशनी से हमारा जीवन रोशन होता है। विज्ञान की शक्ति से हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं और हमारे हाथों में आते हैं। बिजली गाड़ी, फोन और रेल, विज्ञान के बिना सब होते फेल। चांद और तारों तक पहुंच है बनाई, रमन कलाम ने दुनिया सजाई। ज्ञान की ज्योति, विज्ञान का प्रकाश, हर खोज में छिपा विकास। प्रगति के रहस्य जो विज्ञान खोले, नई सोच से सपने मोड़े। आओ मिलकर कसम ये खाएं, नई खोज से जग सजाएं। रमन प्रभाव की खोज महान, सीवी रमन का ऊंचा नाम। 28 फरवरी का पावन दिन लाता है नौ विचारों का संग्राम। My all teachers and my friends, my name is Pragya Patwa from BSc second year. मेरी कविता का शीर्षक है विज्ञान ही तो है। हम जो देखते हैं अपने आसपास, विज्ञान ही तो है। खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई, खाना पकाना हो या कपड़ों की धुलाई, सबके पीछे विज्ञान ही तो है। मधुर आवाज में गाना गाना हो या ध्वनि सुनकर उसमें झूम जाना, किसी बात पर ध्यान केंद्रित करना हो या किसी बात से बाहर निकलना, सबके पीछे विज्ञान ही तो है। मनोरंजन के लिए टीवी हो या हाथों में हो फोन, टेप रिकॉर्डर हो या ग्रामोफोन, दूर बैठे दोस्तों को पल में सामने पाते हैं। चिट्ठी नहीं, एक मैसेज में काम निपटाते हैं। इनके पीछे विज्ञान ही तो है। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Pragati Saxena. I am a student of BSc third year. मेरी कविता का नाम है ज्ञान विज्ञान। विज्ञान ने सब कुछ सहज किया जीवन आसान बनाने को। क्यों भूल रहे हो अनुज तुम, क्यों भाग रहे पछताने को। उत्तर कर्मों का मांग रही प्रकृति अपनी संतानों से। ग्रह नक्षत्र जो मुक्ति मोक्ष समझाते थे, ज्ञानियों को सूझ रहा नहीं अधिक कुछ अपने प्राणों से। उपयोग करो विज्ञान का जीवन को स्वर्ग बनाने को। क्यों व्यर्थ ही आगे बढ़ते हो पृथ्वी वीरान बनाने को। क्षत्रिय है रण भूल बैठा, धनवान भूला है गुलाल। सर पर पाया जब इन वीरों ने, सर पर मंडराता काल। जानते हो निष्कर्ष तुम, फिर क्यों अनजान बने फिरते हो। ना करो दुरुपयोग विज्ञान का, क्यों इस संकल्प से मुखरते हो। स्वार्थ नहीं परमार्थ बने, चरम लक्ष्य कल्पित मन हो। ईर्षा द्वेष कलह हिंसा से, ना मन हमारा विचलित हो। धीरज कोमल वाणी संयम, अब कहाँ भुला के आते हो। नित ओछे छोटे वचनों से, क्यों तुम फिर घबराते हो। आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि, इन तत्वों से निष्कासित हो। फिर कैसे इनसे मुँह मोड़े, क्यों अपनी शान दिखाते हो। रसायन ज्ञान या जीव ज्ञान, तुम्हें ग्रहों का समग्र ज्ञान हो। अस्त्र शस्त्र ज्ञानों का स्वस्थ सृजन परिमाण हो। विज्ञान अति उत्तम ज्ञान है, इसको आगे ले जाओ। बस रखना तुम स्मृति में, फिर से ना तुम पछताओ। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के कल्याण का, जिस दिन गूंजेगा सद्ज्ञान मानवीय शक्ति सद्ज्ञान महान विज्ञान का। अंगसा अडिग पांव धरो, लक्ष्य का चुनाव करो। अपने कीमती जीवन में विज्ञान को तुम आगाज करो। सुख वैभव सफलताएं सब मनुष्य के निसंघर्ष से आती हैं। एक पिता मेरा भी ये विपदा याद दिलाते हैं। थैंक यू।
जीनत बानो। सभी शिक्षिकाओं और छात्राओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं जीनत बानो, बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा, आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विज्ञान न होता तो। विज्ञान न होता तो हम अंधकार में ही रह जाते। विज्ञान के बगैर एडिशन बल्ब कैसे जलाते। विज्ञान न होता तो न होते एक ही आविष्कार। विज्ञान न होता तो न होते रेलगाड़ियां और दूरसंचार। फिर तो हम एक कोने में ही रह जाते और धरती से अंतरिक्ष तक का सफर कैसे कर पाते। विज्ञान न होता तो रहस्य रहस्य ही रह जाते। विज्ञान के बगैर न्यूटन ग्रेविटी कैसे समझाते। तकनीक और रोबोटिक्स है विज्ञान का वरदान, नहीं तो इस दौर में ना जाने कैसे चलता ये संसार। विज्ञान का ये सफर है अद्भुत और विशाल, कृषि और चिकित्सा को मिला तकनीक का वरदान। विज्ञान ने ही तो बताया हमें जीवन का चमत्कार, हर चीज के पीछे है कोई तो आधार, वरना ये संसार तो होता सिर्फ चक्रों का मायाजाल। विज्ञान का है युग यही, विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से ही हो रहा है विश्व का कल्याण है। हम है युवा भारत के, हम है भविष्य का आधार, विज्ञान और ज्ञान से करेंगे विकसित भारत का सपना साकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। उमंग शुक्ला। उमंग। Good morning to the judges and all my dear friends. My name is Javeria Sheikh of class BSc second year. Today we are gathered here to celebrate National Science Day on the topic empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Viksit Bharat. I have created a small poem on artificial intelligence. My title of the poem is स्वामी नहीं सेवक बने। बुद्धि नहीं पर चमत्कार है वो, मानवता का हित आकार है वो, पर हर हाल में सावधानी रहे, स्वामी नहीं वो सेवक बने। लड़े हमारे लिए शत्रुओं से, स्कैमर्स रूपी असुरों से, पर सदैव रहे मानवता का शासन, स्वामी नहीं वो सेवक बने। जटिल को सरल करना हो इसका काम, ना करे शासन और ना संग्राम, ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे, स्वामी नहीं वो सेवक बने। मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़े, मेरे भारत का विश्व में डंका बजे, देश हमारा प्रगति करता रहे, स्वामी नहीं वो सेवक बने। Good morning to our respected professors and everyone present here. I am Zoya from SPM Group, BSc second year, and I am here to present my poem विज्ञान की रोशनी. I hope you all like it. आँखों में सपने, हौसला बुलंद, नवचार से करें नए संदर्भ, चांद की मिट्टी हो या मंगल की राह, भारत का युवा अब न करे परवाह, हर कर्म में विज्ञान, हर सोच में नई उड़ान, नए खोजों से रोशन हो हिंदुस्तान, सूक्ष्म कणों से ब्रह्मांड तक जुड़ा, ज्ञान की रोशनी से नया प्रवाह, ऊर्जा बचाएं, जल को सहेजें, प्रदूषण मिटाएं, हर राह संवारें, तकनीकी की खेती, चिकित्सा सुधारें, नए परिवर्तन की लहर उभारें। अब रुकना नहीं, बस आगे बढ़ना है, हर चुनौती से आगे लड़ना है, विकसित भारत की ओर बढ़े, विश्व में नए इतिहास है। थैंक यू। Very good morning. My name is I am Ishika Rajput from BSc 6th semester and my poem is विज्ञान की दुनिया में चलो हम चले, जहाँ हर एक सवाल का उत्तर हमें मिले, आसमान में तारे, धरती की धड़कन, विज्ञान ने खोले हैं ज्ञान के हर बंधन। विज्ञान के संसार में अद्भुत है यह खेल, जहाँ खोजों की बूंदें देती हैं मेल, सूक्ष्म कणों से लेकर आकाश के तारे, विज्ञान की भाषा में छिपे हैं सारे। जिज्ञासा की किरण हमें आगे बढ़ाए, अनजाने की ओर हर कदम बढ़ाए, प्रकृति के अद्भुत रूप जो दिखाते हैं हमें, विज्ञान के नियम जो समझाते हैं हमें। सूरज की किरणों से ऊर्जा का संचार, चांदनी में छिपा है एक राज, पृथ्वी की परिक्रमा, ग्रहों का नृत्य, विज्ञान की आंखों में है सबका चित्र, हर खोज में छिपा है एक नया सफर, दवा से लेकर तकनीक तक सबका है असर। कभी एडिशन के बल, कभी न्यूटन का फल, विज्ञान ने दिए हैं हमें हर मुश्किल का हल। नव विचार की राह पर चलना है हमें, हर बच्चे के दिल में जिज्ञासा का जज्बा, आओ मिलकर मनाएं इस ज्ञान का पर्व, खुशियों और गर्व से हम मनाएं आज
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ज्ञान का राज। थैंक यू। और आप लोग से थोड़ा प्रेरित होकर मैंने भी कुछ लिखा था, तो मैं भी सुनाना चाहूंगी। विज्ञान का आलोक प्रगति का ज्ञान, विज्ञान का आलोक प्रगति का गान, नव भारत का ये है वरदान। हर ओर देखो जीवन का खेल, बदल रहा है जीवन का मेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आया, मानव के कार्यों को इसने सरल बनाया। रोबोटिक हाथों ने संभाला कई काम है, बढ़ रही है तकनीक की शान। स्टार्टअप की दुनिया में नया जोश जगा है, विज्ञान के बल पर हर सपना जगा है। नवोन्मेष की लहर हर ओर चली है, बदल रही है देश की गली गली है। सड़कें बनी चौड़ी, पुल बन रहे विशाल हैं, विज्ञान ने हर चीज को किया सरल। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हर ओर छाया है, सुगम यात्रा का नया दौर आया है। कृषि में देखो विज्ञान का ही चमत्कार है, उत्पादन बढ़ा जिसने मिटा दिया अंधकार है। स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति आई है, नित नए जीवन रक्षा प्रणाली की कई राहें बनाई हैं। विकसित भारत 2047 का सपना हमने सजोया है, विज्ञान के ही बल पर हर मोती हमने पिरोया है। आत्मनिर्भरता का हम दीप जलाएंगे, विश्व गुरु बनकर हम जग में छाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी अपने इस थीम से रिलेटेड विचार रखना चाहे तो रख सकता है, तब तक हमारा जजमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट बता देंगे। तो लग रहा हो कि काश मैं भी बोल सकती थी, तो वो आगे बोल सकते हैं। जी। फिजिक्स का सी, क्वांटम का झोल, श्रोडिंगर की कैट, जिंदा या ढोल। हाइजेनबर्ग बोला पोजीशन ना पकड़, वेलोसिटी चाहिए तो अनसर्टेनिटी रखड़। रिलेटिविटी आई, आइंस्टाइन का स्क्वायर, E=mc², टाइम का लैब। ब्लैक होल में घूमो या बॉर्म होल का टूर, ग्रेविटी का कर्व, सेम टाइम का शूट। केमिस्ट्री में धमाका, एंट्रोपी का राग, गिब्स का फॉर्मूला, फ्री एनर्जी का जाल। कैटालिसिस करें रिएक्शन का बूस्ट, थर्मोडायनेमिक्स से बनाए हर बूस्ट। ऑर्गेनिक का जांच में कैलकुलस, इंटीग्रल का लोड, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए ब्रेन का कोड। फोरियर ट्रांसफॉर्म, वेव का सिग्नल, कॉम्प्लेक्स नंबर से बन जाए जिंगल। टोपोलॉजी आई, सरफेसेस का ट्विस्ट, मोबियस स्ट्रिप पे लॉजिक का ट्विस्ट। चाओस थ्योरी बोले बटरफ्लाई का फ्लैग, प्रेडिक्शन आर्क, सिस्टम का गैप। फिजिक्स में स्ट्रिंग, डायमेंशंस 11, मल्टीवर्स का चक्कर, बियॉन्ड आवर हेवन। केमिस्ट्री के बॉन्ड्स, क्वांटम का बेस, मैथ्स के प्रूफ्स, इन्फिनाइट का चेज। फोटॉन का डांस या मोल का वाइब, आइगन वैल्यू से सिस्टम को डिस्क्राइब। इंग्लिश में समझ ये तीनों का राज, टफ कॉन्सेप्ट से बनाए ज्ञान का ताज। होता है समाज, विज्ञान की रोशनी से विकसित होता है आज और कल। निकलता है हर समय का हल, विज्ञान और नवाचार का संगम दिखाता है नई दिशाएं। इस नई रोशनी से मिलती हैं नई आशाएं, जिससे मिलता है एक सुदृढ़ संकल्प। विज्ञान संस्कृति का विरोधी नहीं, साथी, सहयोगी और हमराह है। यह साधन है विकास का, भविष्य का प्रेरणा। युग अमृत मंत्र ही नहीं, जीवन ही मंगल हो। विज्ञान और नवाचार की शक्ति खोजेगी वैश्विक चुनौतियों के समाधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः का गूंजेगा उद्घोष। यह कल था, आज है और आने वाला कल है। BSc 4th सेमेस्टर। पोएम का, कविता का टाइटल है पर्यावरण। पर्यावरण है आओ पेड़ लगाएं, जिससे धरती पर फैले हरियाली। तापमान कम करने को है एक यही तोल की तानी। ठंडा होगा जब घर आंगन, तभी बचेंगे मोर पटेल। तापमान जो बहुत बढ़ा तो जीना हो जाएगा भारी। धरती होगी जगह न अच्छी, पग पर होगी बीमारी। रखे संभाले इस धरती को, तभी समय है अभी ना देर करें।
बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है। इसका टाइटल है विज्ञान का योगदान। आइंस्टीन का सापेक्षा का सिद्धांत हमें समय और स्थान का संबंध बताता है। मारी क्यूरी का रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हमें आश्चर्यचकित कर जाता है। स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल सिद्धांत हमें ब्रह्मांड का रहस्य बताता है। आर्यभट्ट का शून्य का आविष्कार हमें संख्या की शक्ति समझाता है। गैलीलियो का दूरबीन हमें आकाश की सैर कराता है। वाटसन और किक का डीएनए स्ट्रक्चर हमें जीवन का रहस्य समझाता है। कैप्लिन का बिजली का आविष्कार हमें ऊर्जा शक्ति का ज्ञान कराता है। एडिसन का बल्ब हमें रोशनी की दुनिया दे जाता है। टेस्ला का विद्युत प्रौद्योगिकी का विकास हमें नवीनतम तकनीक की दुनिया में ले आता है। विज्ञान की दुनिया में हमें एक नई दिशा दिलाता है, जहां विज्ञान की खोज और आविष्कार की धारा में हमें आगे बढ़ना सिखाता है। आइए हम इस विज्ञान की शक्ति का उपयोग करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद। मरदेव सागर, ग्राहम बेल फोन के दाता, जनसंचार के भाग्य विधाता। एडिसन तुम परम प्रवीणा, विद्युत बल्ब खोज कर लिखा। बॉयल और चार्ल्स ने जाना ताप संबंध पुराना। रदरफोर्ड की है गुण लीला, नाभिक खोज परम गतिशीला। खोज कर जब थके थॉमसन, तभी भय इलेक्ट्रॉन के दर्शन। जेम्स चैडविक अति हर्षाए, खोज तभी न्यूटन को पाए। मैकमिलन की भुजा दाहिनी, जय दिचक्रवाहिनी। जॉन डॉल्टन के गूंजे स्वर, आंशिक दाब के योग बराबर। लैंड स्कीनर जब भय आगे, रुके जन जन के जाने। ल्यूवेन हुक खोज कर लीना, सुंदर गात बनायो कोसा। गैलीलियो ने ऐसा जाना, टेलीस्कोप का नाम है प्यारा। जॉन मंडल ने खोज निकाले, आनुवंशिकता के सिद्धांत निराले। बुद्धि शक्ति को सबने छीना, सुगम लोग जीवन कर लेना। धन्यवाद। ये जो कविता है ये आराधना कश्यप की, जो कि बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, और इस कविता का शीर्षक है विज्ञान एक नई पहचान। आदि मानव सा बनकर रह जाता यह संसार, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। समुद्र से उठाकर अंतरिक्ष ले आया यह ज्ञान, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। एक समय ऐसा भी था जब चारों ओर अंधेरा था, दीपक को जलाकर लोगों ने वो कठिन समय गुजारा था। फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, रोशनी की चमकीली चादर पूरी धरती को उठा दिया। अंधेरे से ढका था यह संसार, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। जब अपने दूर हो जाते थे, मिलने को कोई नहीं ना जा पाते थे, पत्र भेजकर लोगों तक मन की बात को पहुंचाते थे। फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, दूर दराज से लोगों को अपनों में ला खड़ा किया। पत्रों के इंतजार में निकल जाते थे कई त्योहार, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। देश में क्या विपदाएं हैं, कब क्या हुई समस्याएं हैं, किसके साथ कब क्या हुआ पता नहीं चल पाता था। फिर गुलियर्मो मार्कोनी ने किया रेडियो का आविष्कार, दूर दूर से लेकर आया सुख दुख का समाचार। आकाशवाणी बना भारतवासियों की जान, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। लोग बहुत लाचार थे, सामान उठा नहीं पाते थे, कंधों पर रखकर बोझा मीलों पार कराते थे। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, पहियों से बनने लगी गाड़ियां, गाड़ियों से एरोप्लेन तक का सफर तैयार हुआ। उड़ सकते हो जो खुलकर आज, तुम्हें मिला पूरा आसमान। विज्ञान ने बदल दी दुनिया और दिलाई हम सबको एक नई पहचान। पैदल सा चलने वाला इंसान अंतरिक्ष में उड़ गया आसान, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान।
शीर्षक है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विकसित भारत का संकल्प। हम भारतवासी हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। महान भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन के प्रति प्यार अपना दिखाते हैं। आज हमारा देश बहुत ही हर्षित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर पूरा भारत गर्वित है। देश हमारा चमक रहा है विज्ञान जगत के नक्शे पर। सर्वाक्षरों में अंकित है आज का दिन दुनिया के नक्शे पर। सर सीवी रमन ने आज ही खोज की थी एक घटना। विज्ञान जगत अचंभित था, कभी ना थी जिसकी परिकल्पना। रमन प्रभाव कहलाई घटना, सर को मिली नई अल्पना। सबने माना सबने जाना, मिला रिसर्च का नया खजाना। रमन प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल कमेटी ने किया नामित, फिर 1930 में नोबेल पुरस्कार से किया सम्मानित। विज्ञान दिवस के मौके पर हम नई ऊंचाइयां पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को यह संकल्पना दिखलाएंगे। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर की गाथा को जीवित रखा है बसु पीसी राय रमन बाबा साहब के हाथों ने। एक से बढ़कर एक हुए हैं इस धरती के आंगन में। सबके कार्यों को जाने समझे विज्ञान दिवस आयोजन में। इसरो हो या टाइपर या हो अन्य उपहार, धरती हो या अंबर, चारों ओर छाया यह त्योहार। आने वाली पीढ़ी को मिले नवीन ज्ञान विज्ञान, दुनिया में रोशन रहे अपने देश की शान। आओ हम सब मिलकर विकसित भारत का संकल्प करें, हो यह सपना साकार। इसके लिए हम मिलकर आज ये प्रण करें। लेकर यह प्रण आओ हम आगे बढ़ें। भारत के विकसित विकास में हम सब सहयोग करें। देश के हर युवा को यह कर्तव्य निभाना है। विश्व में भारत के युवाओं ने यह परचम लहराया, विदेशी मिट्टी पे भी भारत मां का यह मान बढ़ाया। धरती से लेके चांद तक बचता भारत का डंका, चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर भारत ने इतिहास रच डाला। तिरंगे का मान बढ़ाया, हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराया। 2047 तक भारत को है विकसित राष्ट्र बनाना। अब वक्त है देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना। धन्यवाद। जब लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैसे अपनी आसपास की प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना बहुत जरूरी है। इस कविता से यदि आपको पता चलेगा तो कविता का शीर्षक है प्रकृति से प्रेरणा। अगर कभी लगे कि दुनिया है बस मतलब की, तो देखो सर उठाकर इन तारों की ओर, कैसे ये टिमटिमाते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर कभी कठिनाइयों भरे रास्ते से गुजरने का मौका मिले, तो भूल न जाना कैसे एक लंबी सर्दी के बाद एक फूल खिलता है जमी हुई दरारों के बीच। अगर कभी खुद को दुनिया की नजरों से देखने के बाद लगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं, मतलब कि आप किसी और की तरह बनना चाहते हैं पर आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप वैसे क्यों नहीं हैं, तो देखो कैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं एक दूसरे से अलग, पर कैसे ये मिलकर बना देते हैं एक सतरंगी इंद्रधनुष। अगर कभी लगे कि भोर तक जलना है मुश्किल, तो जैसे कि कहा जाता है कि रात भर पढ़ाई करिए तो मन नहीं लगता है, सोचते कैसे करें, तो कैसे हम प्रकृति से सीख सकते हैं। तो देखो कैसे हजारों जुगनू रात से भी ज्यादा चमकना जानते हैं। अगर कभी लगे कि अब कुछ मेरे बस में नहीं, मेरा रास्ता दूसरों से अलग क्यों है, तो देखो कैसे पानी अपना रास्ता खोज ही लेता है। रिस का कैसे छोटी सी धारा से नदी और नदी से विशालकाय समुद्र बना ही लेता है। धन्यवाद। और मैं बीए थर्ड ईयर के छात्र हूँ। मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है जिंदगी। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला और खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे,
हाँ मगा, खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रहे, जो सुकून छीन ले उसे पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का आनंद ले, यूं ही मंजिल पर पहुंचने की कोशिश ना कर। धन्यवाद। ठीक है, और इस कविता का शीर्षक है चलते रहो। ये कविता मैंने इसीलिए लिखी थी कि छोटे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती रहे। अगर ये कविता सुनेंगे तो शायद तुम लोग को भी मिल जाए। बांध लो मुट्ठी, तान लो सीना, बांध लो मुट्ठी, तान लो सीना, चलते रहो तुम तो कभी ना आए कितनी मुश्किल पथ में। चलते रहो बस चलते रहो, चलते रहो बस चलते रहो। दुख भी आए कोई भी तुमको गिरा न पाए। बनकर उम्मीदों का चलते रहो तुम चलते रहो, चलते रहो तुम चलते रहो। जब भी जाए जहाँ अंधेरा, सूरज छुपे जाती सवेरा। बनकर सूरज उम्मीदों का चलते रहो तुम चलते रहो, चलते रहो बस चलते रहो। जीवन में ना मिले तू, दामन में फंस हुई तू। चेहरों पे रंग सुखों का, मरते रहो तुम मरते रहो, चलते रहो तुम चलते रहो। बनना चाहे सब तुम जैसा, काम करो तुम सब कुछ ऐसा। बन सपना सबकी आंखों में, चलते रहो तुम करते रहो, चलते रहो बस चलते रहो, चलते रहो बस चलते रहो। हम सब यहाँ नारियां हैं, तो ये कविता हम सभी के लिए है। और मेरी इस कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। जब धैर्य धरूं तो धरा सी हूँ, जब धैर्य धरूं तो धरा सी हूँ। करूं क्रोध छुरी दो धारी हूँ, मैं नारी हूँ। मुझसे ही दुनिया में जीवन, मुझसे ही रिश्तों का बंधन। कहीं बेटी हूँ कहीं हूँ बहना, कभी पत्नी कभी महतारी हूँ। मैं नारी हूँ। बन अन्नपूर्णा पालन मैं करूं, बन सरस्वती मन में ज्ञान करूं। कहीं सीता हूँ कहीं सावित्री, कहीं माँ दुर्गा अवतारी हूँ। मैं नारी हूँ। जब तक मैं सहूं तब तक अबला, उठ खड़ी हुई बन गई बला। कभी चामुंडा कभी रणचंडी, कभी महाकाली संहारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। बंद कपाटों को, अधरों के नीले घाटों को, मंडल आभा का सुप्त देख, मंडल आभा का सुप्त देख। तन से प्राणों को लिप्त देख, हो ये ना धीरज घट जाए, छाती ना माँ की फट जाए। दिल माँ का ना खुला जाए, आँखों में आंसू आ जाए। माँ तुम मत आना शव लेने, माँ तुम मत आना शव लेने, माँ तुम मत आना शव लेने, माँ तुम मत आना शव लेने। अब उसकी माँ कहती है भगत सिंह की, प्राय देख बेटे का तन, कहीं फूट पड़ा यदि माँ का मन। हो ये ना धीरज घट जाए, छाती ना माँ की फट जाए। दिल माँ का ना अकुला जाए, आँखों में आंसू आ जाए। वो कैसे ना आऊं मैं लेने, कैसे ना आऊं शव लेने। तू सच कहता है मेरे लाल, रख लेती आंसू संभाल। पर गौरव मैं कैसे भूलूं, हे लाल बता कैसे भूलूं। तेरी सांसों को लुप्त देख, तन से प्राणों को लुप्त देख। हो ये ना धीरज घट जाए, छाती ना माँ की फट जाए। कैसे ना आऊं शव लेने, कैसे ना आऊं मैं। फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरी पोयम है वो रानी लक्ष्मीबाई की है और खुद से नहीं लिखी है।
निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र्य घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बातें हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बन के विशाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। सभी को जैसा कि आप लोगों ने साइंस फेस्ट में देखा होगा, एक सर आए थे डॉक्टर संदीप कुमार शिवहरे सर, जो रजिस्ट्रार है BSIP में। तो उन्होंने वहां से एक अनाउंसमेंट की थी कि स्वरचित आप लोग काव्य पाठ प्रतियोगिता कराइए साइंस डे के दिन, और उसमें वो विनर्स को प्राइज देंगे। उन्होंने कैश अमाउंट कॉलेज को दिया है, और उसी के अनुसार जो हमारे विनर्स हैं उनका मतलब मेन फोकस था कि पोएम्स जो भी हो वो स्वरचित हो। तो इसीलिए कुछ बच्चे जो शायद अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन उनकी स्वरचित कविताएं हैं, तो उन सब चीज़ों को देख के जजमेंट किया गया है। ठीक है, स्वरचित होने के साथ साथ बाकी उनकी जो प्रेजेंटेशंस थी। हाँ, टोटल हमारे पास 21 एंट्रीज थी, जिसमें से हमने इंग्लिश कैटेगरी में अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन दिया है। इसी तरह हिंदी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए। तो कोशिश की है कि जिन बच्चों ने मेहनत की है कि उनको प्राइज मिले। कैटेगरी हमारे फर्स्ट प्राइज विनर है महिमा सिंह फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। वहीं सेकेंड शताक्षी त्रिवेदी फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। थर्ड पोजीशन अन्नू कुमारी BSc थर्ड ईयर, एंड कंसोलेशन प्राइज गोज टू तेजस्विनी गुप्ता BSc सेकेंड ईयर। इसी तरह हिंदी में आस्था गौतम BSc सेकेंड ईयर प्रथम पुरस्कार, शिवानी शर्मा BSc सेकेंड ईयर द्वितीय पुरस्कार, अमनदीप कौर BSc सेकेंड ईयर तृतीय पुरस्कार, और प्रगति सक्सेना फ्रॉम BSc थर्ड ईयर, उनको सांत्वना पुरस्कार। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इतने कम समय में आप लोगों ने पोएम्स लिख के ले आए, क्योंकि अभी सब लोग 22 में एंगेज थे, फिर 26 में थे, तो आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की। और हर पोएम की जो उसकी ओरिजिनलिटी थी और कैसे आपने प्रेजेंट किया, उसके आधार पर जजमेंट हुआ है। तो बस मैम आ जाती है, फिर जो बच्चे डिसाइड से चले गए हैं तो कोलैबोरेशन में मेधा के साथ विजिट करती हूँ। फर्स्ट प्राइज गोज टू महिमा सिंह BSc सेकेंड ईयर। Third prize goes to Anu Kumari BSc third year. And consolation prize goes to Tejaswini Gupta of BSc second year. इसी तरह हिंदी भाषा की श्रेणी में आस्था गौतम BSc सेकेंड ईयर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेकेंड शिवानी शर्मा BSc सेकेंड ईयर द्वितीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार अमनदीप कौर BSc सेकेंड ईयर। और सांत्वना पुरस्कार प्रगति BSc थर्ड ईयर।
जितने विनर्स हैं सब आ जाओ, आ जाओ बच्चे। शिवहरे जी रजिस्ट्रार BSIP लखनऊ द्वारा अनुदानित है। अब मैं चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल मैम सबको आशीर्वचन दें सारे प्रतिभागियों। साइंस डे की आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स और टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब साइंस फेस्ट हुआ था तो उसमें हमारे एक विशिष्ट अतिथि आए थे श्री संदीप शिवहरे जी। उन्होंने उसी दिन उनका जब लेक्चर हो रहा था या जो उन्होंने एक तरीके से आपको आशीर्वाद दे रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि आपको वो साइंस डे के दिन छात्राओं के बीच वो चाहते हैं कि एक क्रिएटिव एक्टिविटी हो कि उस पर आप कविता पाठ या पोएम्स लिखें। तो इसलिए उन्होंने 5100 रुपए की कुल धनराशि दी थी। उसको हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका लाभ मिल सके और ये हम सारा उनको देंगे। और आपके लिए एकदम ट्रांसपेरेंसी है उस 5100 रुपए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन आपका इंग्लिश में भी है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंसोलेशन हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश में भी पर्याप्त एंट्रीज आई थी तो ये लगा कि इंग्लिश वाले बच्चों को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंसोलेशन मिलना चाहिए, इसलिए उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। जितने भी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने 3-4 ही कविताएं सुनी थी और आपने क्योंकि उस दिन स्किट भी मैंने देखी तो मुझे तो खैर सबसे अच्छी स्किट केमिस्ट्री वाली लगी थी, पर सभी की मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है। अदरवाइज मुझे उस दिन मौका नहीं मिला था बाद में बोलने का, तो आप सबने बहुत अच्छी स्किट्स की थी। और हम सोचते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ाई में ही रहते हैं तो थोड़ा उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, उसी क्रिएटिविटी को बाहर निखारने के लिए ये प्रतियोगिता भी कराई गई थी। और मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से, साइंस डिपार्टमेंट की ओर से और आप सभी की ओर से संदीप शिवहरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कोई घोषणा की और उसको उन्होंने याद भी रखा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वादे तो बहुत करते हैं नेताओं की तरह, पर उस वादे को याद रख लें ये बड़ी बात होती है ना, और उस वादे को वो पूरा भी कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम समाज में जो लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं या इस कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें हो सकती हैं हम उनसे आपके लिए मांगते हैं उनसे, और अगर वो आग्रह हमारा स्वीकार हो जाता तो आप ही के लिए वो सुविधाएं बढ़ेंगी। पर मेरा आज सुबह से राउंड पे हूँ मैं, तो आप लोग जितने मुझे लगता है 100 बच्चे तो करीब बैठे ही होंगे। आप सभी से कहना है कि आप और बच्चों को भी कहिए कि एक तो यूनिफॉर्म में ही कॉलेज आए जब यूनिफॉर्म है, दूसरी चीज़ कि आप लोग जो हैं अटेंडेंस अपनी अच्छी रखें, क्योंकि हर महीने अब शॉर्ट अटेंडेंस की लिस्ट आएगी और अगर आप कॉलेज नहीं आते हो तो आपके घर पे वो सूचना जाएगी, आपके पेरेंट्स को आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी है। ऐसे आप अभी एलुमनाइज जो थे फाउंडर्स डे पे देखिए उनके इंटरव्यू छपे थे तो 3 एलुमनाई थे, तीनों ने अनुशासन वाली बात कही कि नवयुग कन्या महाविद्यालय में अनुशासन। देखिए जब उस अनुशासन में आपको रहना पड़ता है तो आपको खराब लगता होगा ये 21 एज में, पर आगे चल के आप रियलाइज करते हो कि इसी अनुशासन की वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए। यानी या तो आपने कोई जॉब की, नहीं भी जॉब की तो आप अपने परिवार को भी बहुत अनुशासित रूप में और अच्छे से चलाओगे, अच्छी परवरिश दोगे। तो इसलिए ज़रूरी है। और अपने हम टीचर्स को हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहो या ना कहो, सुप्रभात कहो कि ना कहो, पर ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मेरा रूम पहले ही पढ़ता है, मैं देखती हूँ छात्राएं बैठी रहती हैं, उठती ही नहीं। तो अगर आप पढ़ लिख के ये संस्कार ही नहीं सीख पा रहे तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, यू आर नॉट अटेनिंग नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको अपनी सभ्यता संस्कृति भी सिखाता है। इतना तो हम वेस्टर्न कल्चर में भी लोग एक दूसरे को विश करते हैं ना,
तो ये चीज़ें आनी चाहिए। कभी कोई टीचर वहाँ से गुजर रहा हो तो आप बैठे हो तो आप खड़े हो जाओ। कोई आपको पढ़ाती हो या ना पढ़ाती हो, आपको उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो होता है, आफ्टरनून तक ही रहते हो तो गुड आफ्टरनून करना चाहिए। सब स्कूल में तो सिखाया गया होगा ना। तो इतने बड़े नहीं हो जाते इंटर पास करने के बाद कि सारे संस्कार ही भूल जाओ। तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के अपने अलग लाभ हैं, अनुशासन में रहने के अपने अलग लाभ हैं। तो अगर आप यहाँ आए हो तो इन चीज़ों का पालन करिए। और फिर से आप सभी को साइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें और जो भी स्कॉलरशिप जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप में मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करो, लीजिए। मैं आपके टीचर्स को भी कहती हूँ कि आपके लिए वो ऐसे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस कराएं, ऐसे विद्वत वक्ता को बुलाएं। और जब आपके लिए कोई भी संगोष्ठी होती है या सेमिनार होता है, यानी कोई स्पेशल लोग आते हैं बोलने के लिए, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो हमें आपकी डेली आप अपने टीचर की क्लास तो करते हो, कभी कभी बाहर के लोगों का भी ज्ञान ले लेना चाहिए ना। तो उससे आपकी नॉलेज और एनहांस होती है, क्योंकि हर टीचर का अपना एक अलग गुण होता है। तो ज़्यादा नॉलेज लेने की ये एज है आपकी, ज़्यादा नॉलेज लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रगति करेंगे। और किताबें पढ़ने की आदत डालिए। सब सिर्फ गूगल से और यूट्यूब से ही ना पढ़ने की कोशिश करिए, किताबों से पढ़िए। यूनिवर्सिटी ने भी अभियान चलाया है कि पढ़ेगा विश्वविद्यालय तो बढ़ेगा विश्वविद्यालय, तो पढ़ेगा नवयुक्त तो बढ़ेगा नहीं, ठीक? क्योंकि हम विश्वविद्यालय के पास हैं तो हमें भी इस चीज़ का पालन करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो। आप हैबिट डालिए कि रोज 5 पेज कम से कम पढ़ोगे। 5 पेज मुश्किल से आधे घंटे में आपके हो जाएंगे। कोई भी बुक हो, चाहे कोर्स की बुक हो चाहे कोर्स की इतर बुक हो। और लाइब्रेरी जरूर जाइए। लाइब्रेरी में आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करिए, उसके लिए दृष्टि IAS वालों ने अपना पूरा एक रैक लगा रखा है, वो लीजिए। और भी आप लाइब्रेरी से मांगेंगी तो और भी मैगजीन्स हैं, हर महीने मैगजीन्स आती हैं, पेपर आते हैं। आपकी बुक के अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो कुछ बुक्स मैगजीन्स भी आती हैं, वो उठा के पढ़िए। क्योंकि जितना हम इंग्लिश या हिंदी में पढ़ते हैं, खासतौर पे साइंस वालों को थोड़ा इंग्लिश और अच्छे से आना चाहिए, तब और अच्छी बुक्स आप पढ़ पाते हो। तो आप उसकी पढ़ने की आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जितना आप मैगजीन्स पढ़ते हो। ठीक है, तो आज से लाइब्रेरी जाइएगा, इधर उधर बैठे नहीं नजर आइएगा। बाकी अपनी क्लास करिए, अपने प्रैक्टिकल्स करिए। थैंक यू।